So hey hi, welcome back to the channel. So in this video we will be starting with the functions. So what are the types of functions? Functions, we have three types of functions. First is named function, anonymous function, and then arrow functions. So the name function is the function which we declare a name to it. Like the function, how we write a function, we will give it a name. For now I will give it a my function. Then I will give it a round brackets and then a curly braces. This is a function, it is a named function. Here we are giving it a name. Then there is anonymous function. Anonymous function means the function which we need to call only once or twice. We do not use that function regularly on the regular basis. But how we write a anonymous function? Here we give it a variable like let. Here I will give it any name like my function. Here I will write my function, then equals to, and like this it is and called an anonymous function. Here how we will call this function, we will call like this, like console. I will print something here, hi, and we will get an output. So this is an anonymous function. Like we declare a variable, then we will give a name and the function name itself, and we will call it. So third is an arrow function, the most used function. So how we write a function? Arrow function. Here in the arrow function we will cut down this function name. In the arrow function we do not need to write a function. So here we will simply give an arrow. This is an arrow function. I will simply cut for now. So this is an arrow function. We give it a name. It can be any var, let or const. Here we will give a name, then equals to, and a function. We will not write a function. The round bracket means we are calling a function, then arrow. This arrow is, because of this arrow we call it an arrow function. So same as it is console dot log, and we will print hello, and we will run. See, we will get an output hello. So most widely used functions are name functions and arrow functions. So name function, how we write? Like function, then give it any name function, then we will give it a round bracket and a curly braces. So you can give it a space or not give it a space, but you need to give here a space because we are calling a function. And how we call it? My function, and outside that anywhere we can call it. So in this function, the function, this is how we call it, and this is the named function. I will comment it. And this is an arrow function. How we write an arrow function? We will give it a const for now, variable name, then my function, and equals to the round braces and an arrow to it. And same way we call it, this is an arrow function, and this is a normal function, the named function. So
for now, let's see the named function here. The comment, I have commented this. So to comment a code, a line of code, you need to give two slash, so it can be comment, and it will be not printed anywhere in the code, in the output. So if I run this code and print hi, so see, only hi is printed, not this what I have written, it is not printed. So yeah, so why so the question arises like, हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, बार बार क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमें कुछ लाइन ऑफ कोड, अगर ये मैंने हाई डाला है वो मुझे 10 बार प्रिंट करना है कुछ इस प्रकार, और मैं हर टाइम ये कंसोल नहीं लिखूँगा यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है और फिर प्रिंट करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कमेंट डाला और मैं रन किया तो मुझे ये 10 बार मिला। लेकिन अगर मैं एक ही फंक्शन में ये 10 बार लिख दूँ और मैंने ये फंक्शन कॉल किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए 10 बार हाई लिख के आएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ जो आपको चाहिए वो ये फंक्शन, हमें एक रिपीटेटिव कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। सेम एरो फंक्शन एक ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ आपको लिखने का तरीका अलग अलग है। सो ये पहले था ऐसे लिखते थे, और अभी कुछ एरो फंक्शंस में हम ज़्यादातर कोड लिखते हैं, क्योंकि ये एक सिंप्लीफाइड वे है कोड लिखने का एरो फंक्शन, और ये कुछ ओल्ड वर्जन था फंक्शन लिखने का। तो मुझे कुछ एडिशन करना है। अभी मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, मैं अगर एडिशन कर रहा हूँ तो एडिशन, आप खुद जो चाहिए वो नाम दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं एडिशन करना चाहूँगा तो मैं एडिशन दे रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर मुझे कुछ एडिशन करना है, मतलब मैं अभी इसे प्रिंट करूँगा, अगर मुझे a + b करना है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया वेरिएबल्स, आप यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लेता हूँ, a को मैं 5 डिक्लेयर करता हूँ और b को मैं 10 डिक्लेयर करता हूँ। सो क्या ये रन होगा? अगर मैं रन करके दिखाऊँ, ओह अभी मुझे क्यों एरर दिया, क्योंकि मैंने माय फंक्शन इसका नाम ही चेंज कर दिया था। सो यहाँ पर मैं माय फंक्शन डालूँगा और मैं अभी फिर से रन करूँगा। सो मुझे आउटपुट मिला 15, क्योंकि 5 + 10 = 15, ये कंसोल हुआ। सो इसको मैं और सिंप्लीफाइड वे से कैसे लिख सकता हूँ? सो अगर मैं ये कंसोल यहाँ पर ही डालूँ, सो मैं अगर ये 2 बार लिखने से अच्छा, ये कॉन्स्ट, अगर मुझे बहुत सारे पैरामीटर्स चाहिए ABC, अगर मुझे 5 चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ। सो अगर मुझे बहुत सारे ऐसा कुछ कॉल करने हैं तो मैं कैसे कॉल करूँगा उसको? मैं 10 बार तो लिख नहीं सकता। तो इसके लिए आपको एरो फंक्शन में कुछ आप सिंप्लीफाइड वे से लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो a, मैं पास कर देता हूँ a, b और c। आप यहाँ पर एक सिंगल भी डाल सकते हो, या फिर 2 भी डाल सकते हो, या फिर 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। सो मैंने उसमें a डाल दिया, b डाल दिया और c डाल दिया, और मुझे a और b और c का एडिशन करना है, जो भी मुझे मिलेगा। और जब मैं ये फंक्शन कॉल करूँगा तो उसके लिए पैरामीटर्स चाहिए होंगे, और ABC मेरे को लग रहे हैं, तो उसके अंदर मैं अभी एक नंबर भेजूँगा, मतलब A के जगह पर मुझे क्या भेजना है, B के जगह पर मुझे क्या भेजना है, C के जगह पर मुझे क्या भेजना है। सो A के जगह पर मुझे भेजना है 2, देन कॉमा करके 3 और 4। मैं अभी के लिए 2 3 4 को, ये तीनों को एडिशन करना चाहूँगा।
अगर मैं रन करना चाहूँ तो मुझे आउटपुट मिला 9, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी मतलब 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, ये मुझे एडिशन करके दिया है। अगर मैं यहाँ पर एक माइनस a माइनस बी प्लस सी करूँगा और मैं ये रन करूँगा तो मुझे आउटपुट मिला 3। सो ये होता है, आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर डाले और वो मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। सो ये कुछ फंक्शन हुआ। और एरो फंक्शन में हम कैसे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं ये दिखाता हूँ मैं अभी के लिए। ये मैं कमेंट डाल देता हूँ इन दोनों को। सो यहाँ पर अगर मैं कंसोल करूँ, सेम गोes फॉर दिस एरो फंक्शन। सो हियर आई प्रिंट एनीथिंग लाइक वीडियो और मैं रन करूँगा। अभी कुछ रन ही नहीं किया क्योंकि मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया। अब जब तक फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक आपको वो आउटपुट नहीं देगा। सो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और प्रिंट करूँगा। सो लाइक वीडियो आ गया। सो यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर एडिशन करना है, लाइक एडिशन, सॉरी, सो माय फंक्शन मैंने यही नाम रखता हूँ आपके अभी के लिए। सो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर्स पास करता हूँ। मुझे चाहिए a प्लस बी को मैं पास करूँगा और मुझे कंसोल करना है, मुझे प्रिंट करना है कुछ वैल्यूज़ a और b को। a प्लस बी को करूँगा मैं पास और माय फंक्शन में मैं पैरामीटर्स भेजूँगा। मेरे को ए और बी के जगह पर मुझे क्या भेजना है, मुझे भेजना है 10 कॉमा करके बी के जगह पर मुझे क्या भेजना है 5 और मैं रन करूँगा तब 15 आया बराबर। ए में गया 10 और बी में गया 5। सो मुझे आउटपुट मिला 15। सो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने ए और बी क्यों लिया। मैंने यहाँ पर कुछ अलग भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर भी अलग नाम दे सकता हूँ, क्योंकि और वही नाम मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा। कि अगर मैंने वो दूसरे नाम यहाँ पर डाल दिए और मैंने यूज़ करते समय यहाँ पर अलग नाम दिया और मैंने रन करने की कोशिश की तो ये मुझे एरर देगा। क्या? ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए मैंने किधर यूज़ ही नहीं किया है, मैंने डिफाइन ही नहीं किया है ए, तो वो लेगा कहाँ से। सो ये जो नाम लिया है वही मुझे डालना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं बी के जगह पर वो डालूँ और मैं रन करूँ तब मुझे आउटपुट बराबर मिला। और आपका ये क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने ये यहाँ पर स्ट्रिंग डाला, अगर मैंने डाला हाय और मैंने रन किया तो ये आउटपुट मिला हाय और 5। और ये अगर ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैंने स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ लिखा, ये देखिए, ये सिंप्लीफाइड वे में दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने ए के जगह पर स्ट्रिंग डाला, मतलब मैंने कुछ नाम डाला उसको, और बी के जगह पर मैंने कुछ नंबर भेजा, तो ये प्लस की वजह से कॉन्कैटिनेशन होके वो जॉइंट हो गया। मतलब कि अगर स्ट्रिंग और नंबर वहाँ पर जॉइंट हो गए, एक कुछ जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं फेंकते हैं ये कुछ ज़्यादा। और ये अगर मैंने यहाँ पर ए माइनस की जगह पर ए प्लस की जगह पर माइनस डाल दिया और मैंने रन किया तब मुझे नैन मिला। ये सारा कुछ आप अगली वीडियो में से देखेंगे। ये नैन देन स्ट्रिंग और नंबर अगर हम एडिशन करें तो क्या होगा, कुछ नहीं। अभी के लिए ये फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शन हम कैसे कॉल कर सकते हैं और क्या क्या हम फंक्शन के साथ कर सकते हैं, ये आपने इस वीडियो में सीखा। और अगर ये वेरिएबल ये फंक्शन मैंने 2-3 बार कॉल कर लिया, मतलब अगर मुझे एडिशन करना है ए और बी का, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के जगह पर 5 डाला और मैंने यही फंक्शन मैंने अगर 2-3 बार कॉल किया, चार बार कॉल किया, तो क्या आउटपुट मिलेगा ये देखिए। अगर मैं रन किया तो मुझे 4 बार 10 मिला, क्योंकि ये एक बार रन हुआ, फिर 2 बार रन हुआ, फिर 3 बार रन हुआ, कुछ इस तरीके से।
अगर मैं यही प्रिंट को मैंने यहाँ पर बाहर प्रिंट किया, ये देखिए, ये ए और वेरिएबल बी इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि ये मैंने डिक्लेयर यहाँ पर किया है, यहाँ पर नहीं, मतलब इस फंक्शन के बाहर नहीं डिक्लेयर किया है, इसलिए मुझे एरर दिया। यहाँ पर आप एडिशन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है इसके लिए। सो या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट्स में डाल दीजिए, और आपको एक असाइनमेंट होगी कि आपको मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन बनाना है, मल्टीप्लिकेशन ये रन करेगा ऐसा। आपको 2 का टेबल लिखना है, 10 का टेबल लिखना है, ऐसा कुछ टेबल प्रिंट करके देगा, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल आपको लिखना है। या अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे क्लोजर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।